Meenu Kapoor, and today, as it is the introductory class for class 11, so first of all, I would like to welcome you all in computer science. Today, I will not teach you much. Rather, I will tell you the importance of subject, that is computer science. Because I believe that readiness of the mind is more important than teaching. I'll explain this with an example. Suppose a teacher is teaching a class, right? Doesn't matter, teacher is teaching in a very interesting way and there are 40 students in the class. What do you think? All 40 students take equal interest in the class? Clear answer is no. Some students are very interested in studies and they concentrate on their studies. They listen to the teacher, and some are taking interest but they are easily distracted sometimes, and some rarely care about what is going on in the class. और बुरा मानने की बात नहीं, बट एक आध बच्चा तो बीच में ऐसा भी हो जाता है जो टीचर से नजर बचा के एक आध नैप ले लेता है. वो सोचता है एक आध झपकी ले ही ली जाए. Assume such classes going on, any subject you can imagine. Suddenly teacher says, this topic is very important. What happens after that? Everybody is attentive. हर बच्चा equally attentive हो जाता, जो थोड़ा सा वो नैप वाला था वो भी. And everybody start marking that particular topic or question. सबका अपना अपना मार्क होता है, कोई important लिखता है, कोई very important लिखता है, कोई circle बनाता है. I remember when I was student, I used to write M and a circle. And I used to say M means Meenu and M means most important. So everybody's mark or sign is different, but everybody does this. Why? Earlier also teacher was teaching. This topic also teacher is teaching. But what happened after this statement? This is very important. It just give a click to your minds that yes, this topic is very important. ये तो एग्जाम में आ सकता है. So suddenly you become attentive. And this click work आगे भी ये काम करता. जब आप घर में जाके उस चैप्टर को रीड करते हैं, again that click activates and you start studying that particular topic very carefully. ये क्लिक एग्जाम टाइम पे भी काम करता. अच्छे बच्चे तो डेफिनेटली कंप्लीट स्टडी करते हैं, बट अगर एक थोड़ा केयरलेस बच्चा भी है एंड वो कुछ पढ़े ना पढ़े, बट जब वो सर्कल या साइन या इंपॉर्टेंट या वीएमपी जब उसके सामने आता है तो डेफिनेटली वो उसको बहुत केयरफुली पढ़कर एग्जाम में जाता है. सो दिस इज जस्ट अबाउट अ क्लिक विच इज इन योर माइंड, और एक बार वो छप जाता है आपके माइंड में कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So to know the importance of a particular topic or particular subject is actually more important than studying that particular topic. So initially I will tell you about your subject that you have opted, that is computer science, right? So first of all we'll discuss what are the topics that we are going to cover in the whole syllabus of computer science. Number one is Python language. These are the three main things that you are going to study here in class 11th. One is Python language, second is SQL, and third is cyber safety. You are familiar with these two a little bit. In class 10th, you have studied database. In database, you were doing MS Access with some SQL queries, create table and insert into commands. So this SQL is your RDBMS, database management system. आज की डेट में हर कंपनी
डेटा पे काम करती है. डेफिनेटली डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर पूरी दुनिया जो है वो डेटा का ही खेल है, एंड डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस डेटा इज टू बी managed properly in an effective and efficient way, and SQL provides us this facility to manage the data in effective way. अभी हम बात करेंगे जब जॉब्स की किस तरीके की जॉब्स हमें मिल सकती है, तो SQL is very important from that point of view also. Second thing that you are aware with is cyber safety, that you have learned a bit in class 10th also. Today we are living in this virtual world of internet and everything is online. आजकल तो classes भी online चल रही हैं as the schools are off. Online banking, online shopping, everything is online. But we have to be safe on this virtual world. अगर इस वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखें तो वी कैन बी इन ट्रबल एनी टाइम. सुन रहे हैं कि अभी कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स जो हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो उसमें भी डेटा लीक हो रहा है. तो ये सब सिक्योरिटी इश्यूज हर जगह आ सकते हैं वेयर एवर वी आर ऑनलाइन. So on the cyber world, safety matters. So here you'll learn about cyber safety also. These two topics you are familiar with a little bit, I told you, because they are covered in class 10th also. Now talk about this. This is very important in the course. Python language. Python today is most important computer language. Why? Because earlier in your syllabus also there was C++, and C++ is again very important language. It is the mother language of computer, but CBSE has changed C++ to Python language. ऐसे ही नहीं कि बस CBSE ने चेंज कर दिया. कंप्लीट IITians की टीम के साथ एक लॉन्ग डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुई, एंड आफ्टर दैट द डिसीजन इज टेकन एंड CBSE हैज switched over to Python language. Why? Number one, Python is very easy to use. C++ में जिस काम को करने के लिए, for example, have to write 10 lines in C++, now the work can be done with 2 or 3 lines only in Python. Same way, एक प्रोजेक्ट बनाने में अगर मुझे 1 महीने का समय लगता है C++ में, तो that I can do within 7 or 8 days, maybe less, with Python. So programmers productivity is increased. जब हम किसी कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उससे मतलब नहीं होता हमने उसमें कितना हार्ड वर्क किया, कितने दिन का समय लगाया. ये आउटपुट ओरिएंटेड होता है. उसको आउटपुट चाहिए. अगर वही आउटपुट मुझे कम टाइम में मिल रहा है तो दैट इज बेटर फॉर मी एज अ प्रोग्रामर. क्योंकि as I always say कि we computer people, we programmers believe in smart work, not hard work. So Python is doing that smart work कि कम टाइम में अच्छी प्रोग्रामिंग, अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाएं, ये पाइथन में. तो इट इज वेरी इजी टू यूज लैंग्वेज. दिस इज नंबर वन. फॉर स्टूडेंट इट इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज यू आर लर्निंग फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम पाइथन सीख लेते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद अगर हम कोई और लैंग्वेज करते हैं तो वी कैन इजीली लर्न दैट लैंग्वेज. क्योंकि कंप्यूटर वर्ड की जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐसी नहीं है कि अगर हमने हिंदी सीख ली तो हमें फ्रेंच सीखने के लिए टोटल मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी. नो. If we have learned one computer language, then it is very easy to learn the second language. से अगर आपने पाइथन को सीखने में कुछ महीने का या साल का समय लगाया तो दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेज आप विद इन अ वीक खुद सीख सकते हो एंड विदाउट एनी गाइडेंस. सो अगर हमें वो फर्स्ट लैंग्वेज इजी सीखने को मिलती है दैट इज पाइथन, तो ये हमारे लिए एज अ स्टूडेंट काफी बेनिफिशियल है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इजी. केवल इजी होना पाइथन का मेन फीचर नहीं है. इट इज वन ऑफ द फीचर्स. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पाइथन इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज की जा सकती है, न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट, 3D डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट आप इसको वेब डिजाइनिंग के लिए भी काम कर सकते हैं, एंड आप इसमें बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं. सो
पाइथन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, आप इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं, जबकि अर्लियर देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क। प्रोग्रामिंग नॉर्मल करनी है तो हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं, या सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी है तो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, दूसरे काम के लिए हम दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बट हियर पाइथन गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन डू ऑल दिस इन वन लैंग्वेज, दैट इज Python. So flexibility of Python is again very important, and it is an open source language. No need to purchase it. Original Python आपको नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें आपकी लैंग्वेज में जो आप लोग यूज करते हैं, गूगल, इंस्टा, फेसबुक, Spotify and Quora, YouTube, ये सब और भी बहुत से जिनके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, YouTube, Google, Instagram, Facebook, Spotify, everywhere Python is used. And आजकल के बच्चे Google स्टूडेंट्स हैं, आप YouTube स्टूडेंट्स हैं, you can search out these things कि इन सब चीजों में कौन सी लैंग्वेज का यूज हो रहा है। पूरा YouTube, पूरा Google सब पाइथन के बेसिस पे चल रहा है, हर जगह पाइथन की प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एज आई टोल्ड यू दैट क्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज कितनी यूजफुल हो सकती है फ्यूचर में, कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैंने बहुत कम परसेंटेज ही पाइथन के बारे में बताया। व्हेन यू विल गूगल अबाउट पाइथन यू विल कम टू नो, आज की डेट में आप जॉब सर्च करिए पाइथन की, you will come to know, ग्राफ देखिए पाइथन का, again you will come to know about its scope, आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हो। ये सब चीजें, बड़ी बड़ी कंपनीज हम ले लें, इंस्टा की बात करें और ये IBM की बात करें, डिज्नी की बात करें, सभी में पाइथन का यूज हो रहा है। जितने IITs हैं अब इसमें पाइथन आने लगी है। बीटेक में फर्स्ट ईयर में अभी C++ है, बट तभी हम लोग जब ये CBSE की टीम्स में डिस्कशन हुआ, बिकॉज जब तक आप ये पास आउट करेंगे हर जगह इंजीनियरिंग में सभी जगह हमें पाइथन पढ़ने को मिलेगी। सो नाउ वी टॉक अबाउट बीटेक और इंजीनियरिंग और IIT। अभी हम बात करते हैं कि जब बच्चा PCM लेता है, कौन सी स्ट्रीम के साथ ये कंप्यूटर साइंस बेनिफिशियल सबसे ज्यादा है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम के साथ बाउंड नहीं है। CBSE में एवरी सब्जेक्ट इज ओपन फॉर ऑल, किसी भी सब्जेक्ट को आप किसी भी स्ट्रीम के साथ ऑप्ट कर सकते हैं, सेम एज विद कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। बट फर्स्ट आई टॉक अबाउट PCM की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आप अगर जनरली जो बच्चे बात करते हैं कि हमें बीटेक करना है या IIT करना है, भाई JEE मेंस क्लियर करना है या BSc IT करना है या BSc कंप्यूटर्स करना है, तो डेफिनेटली पाइथन और दिस कंप्यूटर साइंस विल डेफिनेटली हेल्प यू 100%, बिकॉज बीटेक के कोई भी स्ट्रीम आप ले लें, सिविल लें या इलेक्ट्रॉनिक्स लें या केमिकल लें या IT लें या कंप्यूटर साइंस लें या AI लें, देयर आर लॉट मेनी स्ट्रीम्स। सभी के फर्स्ट ईयर में यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामिंग आप यहाँ सीख के जाते हैं वो आपको आगे पढ़नी ही पढ़नी है इन एनी केस, कहीं पर भी, JEE मेंस में, IIT में, बीटेक में, कहीं भी आपको ये सब पढ़नी है, BSc IT में, BSc कंप्यूटर्स में। सो जो चीज़ हमें आगे करनी है वो हम यहाँ क्यों पढ़ें, यहाँ इसलिए पढ़े बेटा क्योंकि वहाँ पर आपको लेक्चर मेथड एक टोटली बड़ों की तरह पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप ABC, वर्ड मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग, पैराग्राफ मेकिंग एंड एसे राइटिंग, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जब सीखते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। Now we talk about other streams. If I am talking about streams, if you are not choosing PCM and you are a student of PCB or humanities or commerce, then definitely this computer science will work as plan B for your future career. If not successful in the main career of commerce or humanities or PCB, as you can go for IAS with humanities or CA or CS with commerce or medical line with PCB, definitely this is your main line, this is your plan A. But in case
you are उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता या you are not selected for that, then computer science will work as plan B for you. Without maths, without even science, you can be eligible for equivalent job as computer engineers. जो जॉब बीटेक के बाद स्टूडेंट्स को मिलती है कंप्यूटर साइंस के थ्रू, विदाउट मैथ्स और विदाउट साइंस के भी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. I'll tell you later on how, because there are lot many options that without opting maths or without opting science, with computers you can go with these lines and you can be equally eligible as engineers, right? So now talk about the designation of the jobs. कि हम कंप्यूटर्स अगर लेते हैं तो कल को हम किस किस करियर में जा सकते हैं. तो सबको मालूम है, एक तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम बात करते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, यू आर लर्निंग डेटाबेस हियर. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं और नेटवर्क इंजीनियर आप बन सकते हैं. सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर से भी बड़ी पोस्ट होती है जो सबको मैनेज करता है, ये आप कर सकते हैं. वेब डिजाइनर आप बन सकते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट पाइथन कैन बी यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग आल्सो. आप गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, 3D डेवलपमेंट में जा सकते हैं. एंड देयर आर लॉट मेनी मोर ऑप्शंस. जब आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली लेटर ऑन वी कैन गाइड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज अबाउट द कोर्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न. एंड रिमेंबर दिस क्लिक इन योर माइंड्स that what you are going to study is very important. So keep this click in your mind always activated. Thank you. Best of luck. Once again, welcome in the world of computer science.